हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9 का जो पेपर है सोमवार को आपके होने वाला है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान एंड इट्स ट्रेडिशन ऑफ गैलेंट्री। राजस्थान का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एंड इन इंग्लिश मीडियम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम का जो ये सिलेबस है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, so let's start without any delay. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। देयर आर 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और ये आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी क्वेश्चंस आप लर्न करके जाओगे, पक्के इनमें से ही आएंगे। तो चलते हैं सीधे लेसन में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन 1923 विच प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान, इन 1923 विच प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान ब्रिटिश लास्टली कंक्लूडेड ए ट्रीटी। 1823 में 1819 से संधियाँ शुरू हुई थी। ब्रिटिश ट्रीटीज वर स्टार्टेड टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट्स इनटू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंक्लूड करने के लिए जो प्रिंसली स्टेट्स की जो ट्रीटीज शुरू हुई थी उनमें जो लास्ट स्टेट था, लास्ट प्रिंसली स्टेट था, दैट वाज द सिरोही। सिरोही वाज इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ 1823। Okay, so Syria was included in 1823, the last princely state. When 1857 revolution started and at which different places there were the military cantonment in Rajasthan. When the 1850 revolution started in Rajasthan, the first war of independence 1815 started in Rajasthan. But there are different places of Rajasthan that revolt take place. The first revolt started in Erinpura. Okay, first revolt started in Erinpura. Erinpura was in Ajmer. So the first military cantonment was Erinpura. Erinpura soldiers were revolted against the British rule, and they took the power of the Erinpura, and then they started to go to Delhi. Okay, then there was the Byawar, Nimach, Kherwada. Okay, last. Next, in Rajasthan, Erinpura, and second maybe the Nasirabad also. Nasirabad. Okay, soldiers revolted against the British rule. In Rajasthan, which state date did the revolution start in 1857? 1857 struggle with which was the date to start the revolution? The date was given May 28. May 28, 1857. This was the date to start the revolt. But suddenly there is no communication between these soldiers and these military cantonments. कम्युनिकेशन नहीं था, तो कई पहले शुरू हो गई, कई बाद में। सॉरी, सम cantonment started the revolt very early and some started very late. So the date was fixed to revolt was at May 28, 1857. Name 3 main places of Rajasthan where the soldiers revolted in 1857. 3 main places of Rajasthan where soldiers revolted in 1857. 3 main places was that Nasirabad, Neemuch and Jodhpur. First is the 1 minute. Nasirabad, second Neemuch, and third is the Jodhpur. These were the main places. Thakur Kusal Singh, that was from Aua, and that place was also in Jodhpur presidency. So we can say that Nasirabad, Neemuch and Thakur of Aua also revolted against the British rule in 1857. Mentions the names of those 3 princely rulers of Rajasthan who cooperated with the rebels in 1857. Those princely rulers who not revolted, but they helped the British people. They helped the British people to subdue those revolutions. उन क्रांतिकारियों को दबाने में ब्रिटिश रूल्स की हेल्प की थी। उन 3 प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के नाम बताने हैं। देखो, ठाकुर कुशाल सिंह आवा,
सिंह आवा, इसने हेल्प की थी। ओके, सेकंड इज द राउत सवाई सिंह, रावत सवाई सिंह ऑल्सो हेल्प्ड द ब्रिटिश रूल, ही वॉज फ्रॉम ए सलूम्बर उदयपुर, सलूम्बर उदयपुर ही हेल्प्ड। एंड थर्ड इज द राउत जोध सिंह, राउत जोध सिंह। So these people helped the British people during the revolt of 1857. And through the light of expansion of the British Empire in Rajasthan, you know, British people started its expansion policy in 19, especially in 1819, 1819 with the, you know, treaties to include the British, to include the princely states into British Empire. With these treaties, they are included in the British Empire. Okay, so there are a lot of effort made by the British people to include the British in somehow divide and rule, discriminatory policies. Okay, briefly explain the major reasons for beginning of the revolution of 1857. 1857 की रिवोल्यूशन बिगिन का मुख्य कारण क्या होता है? फर्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ए ब्रिटिश, डिस्क्रिमिनेटरी नेटरी पॉलिसीज ऑफ राजस्थान। सेकेंड इज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ए, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये पॉलिसी रही है ब्रिटिश की। एंड थर्ड इज द ना हैवी टैक्सेज इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स एंड peasants, heavy taxes were imposed on the farmers. And fourth may be then there are several policies of expansion policies like Dalhousie started to left policy that if there is no here, no Uttaradhikari, so the state was included in the British territory. So these policies are responsible for the main reason of the beginning of the revolution of 1857. 1857 की जो revolution है उसके मुख्य कारण ये है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही थी, हेवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे। तो ये पॉलिसीज मेन रही थी, भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज दिस? 1 minute, 1 minute. What's going on here? It's the problem. Okay. Next chapter. Mention the names of 3 rebels of Sikar region. Sikar region के 3 आपको rebels बताने हैं। Okay, rebels who played an important role in the freedom of 1857. सिक्कर जो क्षेत्र था उसमें 3 मुख्य विद्रोह लिखने हैं कि कौन कौन से 3 विद्रोही थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया था। ओके, वन ऑफ इट इज द डूंगजी, ये लिखना है डूंगजी। एंड सेकेंड हिज नेफ्यू जवाहर जी। Dungji and Jiwarji, these are the 2 main rebels in the Sikar region. They rebelled against the British rule in Sikar region. Okay, they are the uncle and nephew, kaka bhatija, the pair is called. So they revolted against the British rule in Sikar region during the 1857. In the freedom struggle of 1857, which revolutionary of Rajasthan was the first hanged by the British rule? फ्रीडम स्ट्रगल 1857, विच रिवोल्यूशनरी कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का वो जो फर्स्ट हैंग्ड, पहले फांसी पर चढ़ाया गया था, सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया गया था ब्रिटिश रूल के दौरान, किस विद्रोहकारी को? तो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी इन राजस्थान हु वॉज ए हैंग्ड बाय द ब्रिटिश रूल। ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मेरठ, बट ही कीप ऑन रनिंग, दौड़ता रहता था, ठीक है।
Which newspaper was mainly edited by the Vijay Singh Pathik? Which paper was edited by the Vijay Singh Pathik? There are several papers were edited by the Vijay Singh Pathik. Navind Rajasthan, one of it is Navind Rajasthan. Second is the Tarun Rajasthan, Navind Rajasthan, Tarun Rajasthan. And third is the Rajasthan Kesari, Rajasthan Kesari. These are the major papers he edited, Vijay Singh Pathik edited. Who authored चेतावनी का चूंटिया? चेतावनी का चूंटिया को किसने लिखा था? चेतावनी का चूंटिया was written by केसरी सिंह बारठ. केसरी सिंह बारठ. केसरी सिंह बारठ रिटर्न द चेतावनी का चूंटिया टू द महाराणा ऑफ उदयपुर. उदयपुर की महाराणा को लिखा था. हु वॉज गोइंग टू अटेंड द कन्वेंशन एट दिल्ली. दिल्ली में मुगल साम्राज्य उनका कन्वेंशन अटेंड करने जा रहा था, तो उन्होंने चेतावनी का चूंटिया लिखा. इन मेमोरी ऑफ विच रिवोल्यूशनरी इन रास्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ए मेमोरियल वॉज बिल्ट. कौन से क्रांतिकारी है? रास्तापाल गांव जो डूंगरपुर है, उस रास्तापाल गांव में किसकी याददाश्त में डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बिल्ट किया गया है? देखो, डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल नाना भाई खान, नाना जो टीचर था नाना भाई कांट, नाना भाई कांट एंड हिज स्टूडेंट कालीबाई, कालीबाई, इनकी याद में मेमोरियल बिल्ट किया गया. नाना भाई कांट वॉज ए टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल एंड कालीबाई वॉज हिज टीचर, हिज स्टूडेंट. सो नाना भाई कांट, British people warned Nana Bhai Khan to close the school, but Nana Bhai Khan didn't close the school. स्कूल को क्लोज नहीं किया, तो दे ड्रैग्ड द नाना भाई. तो काली भाई ने क्या किया? ड्रैगिंग कर रहे, तो ही कट द रोप ऑफ द ड्रैगिंग हो रही, तो काली भाई ने काट दी. सो द पीपल वर शूट हिम. जो पुलिस थी, जो आर्मी थी, उन्होंने शूट कर दिया इसको. तो both Nana Bhai Kant and his dedicated disciple student are famous. So in these both of these memories, there was the memorial built in a Dungarpur. Describe the role of Vijay Singh Pathik in freedom struggle. Freedom struggle Vijay Singh Pathik ने कौन सा रोल किया? देखो, विजय सिंह पथिक का मेन रोल था. ही वॉज द एडिटर ऑफ मेन न्यूज. ही स्प्रेड द अवेयरनेस इन ए पीपल ऑफ राजस्थान. पीपल ऑफ राजस्थान में उसने अवेयरनेस स्प्रेड की थी. अवेयरनेस होती जागृति, अवेयरनेस इन राजस्थान थ्रू द न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जागृति स्प्रेड की थी. एंड ही वॉज ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑल्सो. ही took part in many struggles against the British rule. So his role is very important in Rajasthan. Who was the Arjunlal Sethi and what was his role in the liberation struggle? Arjunlal Sethi जो क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है, आप किताब में खुद सर्च कर सकते हो, ठीक है. राजस्थान में न्यूज़पेपर्स की क्या रोल रहता है? न्यूज़पेपर स्प्रेड द अवेयरनेस इन राजस्थान, स्प्रेड द अवेयरनेस इन राजस्थान. राजस्थान में जो जागृति फैलाई वो न्यूज़पेपर ने फैलाई थी, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर. छोटे क्वेश्चन है वो जितने भी लर्न कर लेना, बड़े क्वेश्चन में बढ़ाने में भी टाइम लगता है, ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट? थर्ड चैप्टर. फेमस पीसेंट मूवमेंट बिजोलिया एग्जिस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिजोलिया district in Bijolia place is located in a Bhilwara. Bijolia is in a Bhilwara district of Rajasthan, and it is the famous peasant movement in Rajasthan. राजस्थान में प्रसिद्ध ये किसान आंदोलन था, against the tax imposed by the landlords and the government. बिजोलिया फार्मर से स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू पे द टैक्स पे करने के विरुद्ध में बिजोलिया के किसान थे, वो खड़े हो गए सामंतों के विरुद्ध. वोट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द विजय सिंह पथिक? भूप सिंह गुर्जर वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ विजय सिंह पथिक. भूप
सिंह गुर्जर. Bhup Singh Gurjar was the original name of Vijay Singh Pathik. Who was the editor of the Pratap newspaper? Pratap newspaper के editor विजय सिंह पथिक ही थे, है ना. There are a lot of newspaper he published. Pratap is one of them. Who was the main leader of भरतपुर peasant movement in 1931? भरतपुर peasant movement में जो main leader था वो कौन था? मोहम्मद हाडी. मोहम्मद हाडी is the main. मोहम्मद हाडी is the main leader of Bharatpur peasant movement in 1931. During freedom struggle, which farmer massacre in Rajasthan was compared to Jallianwala Bagh by Mahatma Gandhi? In Alwar district, there is the farmer struggle. Okay, and British used very powerful to start that a struggle. Okay, so Gandhi compared second diarism. गांधी ने इसको सेकेंड डायरिज्म से कंपेयर की, एंड दैट वाज द किसान सेक्रेटरी नींबू चना नीम चुना. This is the farmer movement where more than 800 farmers were killed by the British people. 800 से भी ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए थे. And Gandhi called it the second Dyerism. General Dyer was killed a lot of people in Jallianwala Bagh. But in Rajasthan also there is Nimbu Chuna Kisan movement in Alwar, where 800 people were killed by the massacre of British people. ब्रिटिश पीपल के द्वारा मस्करी करने 800 लोग मारे गए थे, और गांधी ने उसको सेकेंड डायरेज में कहा, सेकेंड जलियांवाला बाग मैस्करेंस कहा था. बिजोली किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक का रोल. देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विजय सिंह पथिक से. ही guided the people in Bijolia. What is the method of struggle and how they can win? Vijay Singh Pathik has the very important role. Okay, these are the big and broader questions. So I think you have to learn small questions. छोटे छोटे questions आपको ये learn करने. They are the most important. Okay. Next. 1 minute. What happened? We go to next page. Yes. Where was the headquarter of the मेरवाड़ा बटालियन? मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड था? मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर ब्यावर में. मेरवाड़ा हेडक्वार्टर ब्यावर इन अजमेर. ओके. वेयर वॉज द हेडक्वार्टर मेवाड़ भील कॉर्प्स लोकेटेड? मेवाड़ भील कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर था वो खेरवाड़ा में था. खेरेवाड़ा. हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ए भगत पंथ? भगत पंथ के एक्सपोनेंट कौन थे? गोविंद गिरी. गोविंद गिरी वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ भगत पंथ इन राजस्थान. हिज लाइफ वॉज स्टार्ट इन 1858 to 1931 he was died. So this is the life period of a Govind Giri. He was very important, very ascetic person, a saint who motivated the people against the British, and also a religious person. He started a Ekki movement. Who started the Ekki movement? Govind Giri. Bhagat Movement and Ekki movement both started by the Govind Giri. Okay. Which new battalion was formed in 1921 after disbanding of the Devli regiment and Erinpura regiment? देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट के डिसबैंडिंग होने के बाद कौन सा बटालियन है वो बनाई गई थी? मीना कॉर्प्स. मीना कॉर्प्स. भील कॉर्प्स के बाद मीना कॉर्प्स है, ये बटालियन बनाई गई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर. ओके. इन 1888 1858 में
विच रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम राजस्थान पार्टिसिपेटेड इन द इलाहाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस। राजस्थान का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था, जिसने इलाहाबाद जो नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट हुआ। उस प्रतिनिधि का नाम बताओ जिसने इलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस को भारत में जो कांग्रेस के सेशन चल रहे थे हर साल, तो उसमें इलाहाबाद जो सेशन था उसमें कौन से प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया। गोविंदनाथ माथुर। देखो कई प्रतिनिधि थे। गोपीनाथ माथुर, गोपीनाथ माथुर, गोपीनाथ माथुर। सेकंड इज द किशन लाल, किशन लाल। एंड थर्ड इज द हरविलास शर्मा, हरविलास शारदा, सॉरी, हरविलास शारदा। These are the representative from Rajasthan who took the part in Allahabad session of the Congress. In 1919, where was the Rajasthan Seva Sangh established? Where was the Rajasthan Seva Sangh established? Ajmer. In Ajmer, Rajasthan Seva Sangh was established. And in Seva Sangh, Vijay Singh Pating has an important role in the Seva Sangh. And what is the Seva Sangh's main objective is to spread the awareness and motivate the people against the British rule. And their main objective to free the Rajasthan from a ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से राजस्थान के लोगों को परे करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था सेवा संघ का, जो अजमेर में इसकी स्थापना की थी। वेन was the all native peoples council established? All native peoples council was established in 1927. In 1927, all native peoples council was established. By whose efforts in 1945, Dungurpur Prajamandalam was established? Dungurpur Prajamandalam established by Bhogilal Pandya. Bhogilal Pandya. Dungurpur Prajamandalam was established by Bhogilal Pandya. From where did the publication of English Weekly Rajasthan Times begin? कहाँ से पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश वीकली राजस्थान टाइम्स बिगिन हुआ था? अजमेर से। राजस्थान टाइम्स, दिस इज द वीकली न्यूज़पेपर एंड इट स्टार्ट्स इज पब्लिकेशन फ्रॉम अजमेर। अजमेर से इसने अपना पब्लिकेशन शुरू किया था। ऑन अगस्त ऑन अगस्त 8, 1855 को। ओके, द नेक्स्ट, sorry, it's not going so easily. The last chapter, 7th chapter, PDF, when PDF is making, so is not in sequence, so this is the last के बाद चौथा और है 506 भी बताऊंगा। देखो, who presented the scheme for the formation of राजस्थान यूनियन? राजस्थान यूनियन की फॉर्मेशन स्कीम किसने प्रेजेंट की थी? ऊपर चेंज स्कीम है राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन की जो फॉर्मेशन की स्कीम है वो उदयपुर के जो महाराजा थे उसने की थी। 1 मिनट, आई एम गोइंग टू, हाँ, हु प्रेजेंटेड द स्कीम फॉर द राजस्थान फॉर्मेशन? भोपाल सिंह, महाराजा ऑफ उदयपुर, महाराजा भोपाल सिंह। In 1946, Matsya Sangh was already made, and there was the कन्वेंशन ऑफ द कोटा। कोटा में कन्वेंशन होता, सभा हुई थी, उसमें महाराजा ऑफ भोपाल सिंह, महाराजा ऑफ उदयपुर भोपाल सिंह ही प्रोपोज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन को फॉर्मेट करने के लिए उसने प्रस्ताव रखा, स्कीम रखी। तो किसने प्रेजेंट की स्कीम? भोपाल सिंह ने। विद द मेजर ऑफ विच नेटिव स्टेट्स मत्स्य संघ वॉज फॉर्म्ड? किन स्टेट्स के मेजर से मत्स्य संघ बना? देखो, मत्स्य संघ के लिए 2-3 है। अलवर, 4 राज्य थे, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, एंड 4th इज द करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दीज आर द 4 नेटिव स्टेट्स टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना के लिए ये 4 राज्य थे।
व्हेन वॉज द मेवाड़ मेर्ज्ड इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। मेवाड़ है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान में कब मिला था? मेवाड़ है वो राजस्थान संघ में कब मिला था? मेवाड़ वॉज मेर्ज्ड इनटू 18 अप्रैल 1488। कब मिला था? बट इट इज हैंग्ड। मेवाड़ वॉज मेड 18 अप्रैल 1848 में मिला था। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज द ग्रेटर राजस्थान फॉर्मड? ग्रेटर राजस्थान कब फॉर्म हुआ था? 30 मार्च 1949 को। 13 मार्च 1949 को मेवाड़ है जो ग्रेटर राजस्थान है वो बना था। ओके, ग्रेटर राजस्थान फॉर्मड इन 30 मार्च 1949। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेलेक्ट द कैपिटल ऑफ ग्रेटर राजस्थान? किसकी चेयरमैनशिप पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कमेटी बनाई गई थी टू सेलेक्ट द कैपिटल ऑफ ग्रेटर राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान की कैपिटल को सिलेक्ट करने के लिए? ठीक है, इट इज नॉट रनिंग। ओके, किसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी? तो पंडित सत्यनारायण राव के, पंडित सत्यनारायण राव के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी कैपिटल ऑफ ग्रेटर राजस्थान को चूज करने के लिए। ओके, दीज आर द 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड यू लर्न ऑल दीज क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज क्वेश्चंस। मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से लर्न किए होंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सभी क्वेश्चंस आप है इनके इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।